زرمین گاڑی سے اترتے ہی کیا دیکھتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ زرمین اپنے والد کی قبر دیکھ کر شدید غم میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بہت روتی ہے۔ زرمین کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے والد کے جانے پر اداس اور مایوس ہے اور سوچتی ہے کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ زرمین اپنے والد کے جانے پر روتی ہے اور ان کے اکیلا چھوڑ جانے پر دکھی ہے۔ اظہر مذاق میں زرمین سے کہتا ہے، بابا کہہ رہے ہیں کہ بچہ رونا بند کرو اور یہاں سے جاؤ۔ زرمین کہتی ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اظہر کہتا ہے کہ تم دل کی بات کو کیوں نہیں سمجھتی۔ سرزمین مڑ مڑ کر اپنے بابا کے قبر کو دیکھ رہی ہے۔ زرمین اظہر کی تعریف کرتی ہے اور اظہر زرمین کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اظہر یہ کہتا ہے، زرمین ہوا سے لڑتی ہے لیکن نازک باتیں نہیں سمجھتی۔ زرمین کا ہاتھ دیکھ کر اظہر کہتا ہے کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے، کیونکہ خوشیاں خود اس کے در پر دستک دے رہی ہیں۔ ادھر اچھی ورائٹی ہے۔ زرمین کہتی ہے کہ اتنی جیولری کیوں لے رہی ہو، اور نازیہ کہتی ہے کہ یہ کام آ ہی جاتی ہیں۔ زرمین کو نازیہ بہت خوش نظر آتی ہے۔ نازیہ کہتی ہے کہ وہ بینک کے آفیسر نے انہیں ڈنر کے لیے انوائٹ کیا ہے، جبکہ زرمین کہتی ہے فوراً نہیں ہاں کرنا، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ تم بہت بے وقوف ہو۔ نازیہ اپنے لیے جیولری اور انگوٹھی پسند کر رہی ہے۔ زرمین اور نازیہ مال سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چور گزرتے ہوئے زرمین کے ہاتھ سے پرس چھین کر نکل جاتا ہے۔ زرمین چلاتی ہے، چور چور! نازیہ سارا ڈھونڈ کر آ جاتی ہے۔ چور کہیں نہیں ملتا۔ زرمین نازیہ کو بتا رہی ہے، پرس میں میرا کیمرہ، چیک بک، کریڈٹ کارڈ اور سب سے اچھا میک اپ۔ نازیہ اظہر کو فون ملاتی ہے۔ زرمین کہتی ہے، نازیہ کو کیا؟ اظہر SHO ہے۔ اظہر کی شرارت کی وجہ سے نازیہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اظہر ہیرو کی طرح زرمین کا پرس ڈھونڈ کر لے آتا ہے۔ زرمین واچ مین کو شکریہ کہتی ہے۔ اظہر زرمین کو پارٹ لے جاتا ہے۔ اظہر زرمین کو کہتا ہے، تم اپنا پرس چیک کر لو کہ تمہارے پرس میں ساری چیزیں کمپلیٹ ہے۔ پرس میں ایک باکس نکلتا ہے۔ اظہر ہلا کر چیک کر رہا ہے کہ کیا چیز ہے۔ اظہر ڈرا دیتا ہے۔ زرمین کو اس میں تو بوم ہے، ڈر جاتی ہے بوم کا نام سن کر۔ یہ اظہر کی شرارت ہوتی ہے۔ اظہر باکس کھولنے کا کہتا ہے۔ زرمین باکس کھولتی ہے۔ اس میں انگوٹھی دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اظہر بھی زرمین کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اظہر سرپرائز دیتا ہے، اسے انگوٹھی گفٹ کرتا ہے۔ زرمین کے ہاتھ میں انگوٹھی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اظہر زرمین کے ہاتھ کی تعریف کرتا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں بہت اچھی لگتی ہے۔ ویسے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ ریل ڈائمنڈ ہے۔ پھر تو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن نہیں کرتے واپس۔ میں اسے پہن کے رکھوں پلیز؟ کیا اتنی دیر سے پہلیاں بھجوا رہے ہو؟ اب بتاؤ بھی نا کیا بات ہے۔ ممی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تم اور رائم میرے بیٹوں جیسے ہو۔ رائم کی ابھی میں بات نہیں کر رہا، ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں آپ؟ یہ باتیں ناپ تول کی نہیں کی جاتی بیٹا۔ اگر میں آپ سے بہت ہی قیمتی تحفہ مانگوں تو آپ دیں گی مجھے؟ ہاں دے دوں گی۔ وہ ایسے نہیں، وعدہ کریں۔ اچھا بابا، وعدہ کیا۔ اظہر زرمین کی امی سے اپنے اور اظہر کے رشتے کی بات کر رہا ہے۔ زرمین کی امی منع نہیں کر پائے کیونکہ اظہر زرمین کا بچپن کا دوست ہے، وہ دیکھا بھلا لڑکا ہے۔ زرمین کی امی کی طرف سے ہاں ہوتی ہے۔ ایک بار صرف زرمین سے پوچھنا چاہتی ہے۔ اظہر بہت خوش ہوتا ہے، زندگی کی چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں محسوس کرتا ہے۔ اچھا تو پھر اپنی امی سے کہنا کہ مجھ سے فون پر بات کریں۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں بیٹا، اگر زوفین یہ چاہتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارے ارے I love you. I'll see you. Bye.
رامیز زرمین سے بہت پیار کرتا ہے پر اسے کبھی بتا نہیں سکا۔ رامیز ہر وقت زرمین کے بارے میں سوچتا ہے لیکن دوستی کی آڑ میں اپنے پیار کو قربان کر دیتا ہے، پیار نہ ملنے کو سچا پیار کہتے ہیں۔ رامیز اداس چلتے ہوئے زرمین کے خیالوں میں گم تھا۔ اظہر رامیز نے اسے اندھیرے میں تنہا بیٹھے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھتا ہے، رامیز تم یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ رامیز نے نظریں چھپا کر بات بدل دی، کچھ نہیں، تم تو خوش ہو نا؟ اظہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں میں بہت خوش ہوں، میرے آس پاس میری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اظہر اپنے اور رامیز کے لیے کوفی بنانے جا رہا ہے۔ हेलो। हाँ आइजर, इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो? ओहो, मैं आइजर नहीं, आइजर का बाप बोल रहा हूँ अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे ये लो, ये अम्मी से बात करो। अजहर के अम्मी और अबू फ़ोन पर ज़रमैन की खैरियत पूछते हैं। अजहर की अम्मी उसे बताती हैं कि दुआ करो सब अच्छा हो, क्योंकि वो जल्द ही उसके घर रिश्ता के लिए आने का इरादा रखते हैं। ज़रमैन परेशान हो जाती है, ये लोग तो आ रहे हैं। अब ज़रमैन घबराहट महसूस करती है और ये बात अपनी अम्मी और अपनी दोस्त नाज़िया को बताती है। नाज़िया उसे डांटते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब शोर क्यों मचा रही हो। ज़रमैन के पास अजहर की अम्मी अब्बू का फ़ोन आया था। अजहर के अम्मी अब बुरिश्ता के लिए आ रहे हैं। उस पर ज़रमैन की अम्मी कहती है, इसमें क्या बुराई है। ज़रमैन का कहना है कि वो पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है और अपना कैरियर बनाना चाहती है, कि ये सब सोचना था इस खूबसूरत अंगूठी पहनने से पहले। ज़रमैन शर्माते हुए कहती है कि वो अंगूठी ही इतनी खूबसूरत थी कि वो मना ना कर सकी। ज़रमैन कहती है कि अजहर ने अंगूठी देकर कोई एहसान नहीं किया, वो चाहे तो इसे लौटा भी सकती है। ये सुनकर उसकी अम्मी डांटती हैं और कहती है कि ऐसी बातें दोबारा ज़बान पर ना लाएं, क्योंकि लोग जो कदम खुशदिली और प्यार से बढ़ा रहे हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए। इसकी अम्मी संजीदगी से जवाब देती हैं कि ये अंगूठी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, कोई बग़ैर सोचे समझे नहीं पहनता, और अब जब ज़रमैन ने ये अंगूठी पहनी है तो इसका मतलब तुमने अपना हाथ अजहर के हाथ में देने का वादा कर दिया है। ज़रमैन अपने और अजहर के रिश्ते की बात बताने के लिए रामीज़ के पास आती है। देखो, मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूँ। जहाँ तक तुम्हारे मसाइल की बात है, वो तो बचपन से हल करता आ रहा हूँ। ये क्या कर रही हो? बात ये है कि आइजर के अम्मी अब्बू आ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है वो शादी के लिए बहुत जल्दी करेंगे। That's good. वो बेचैनी से कहती है कि उसे शादी नहीं करनी। रामीज़ उसे याद दिलाता है कि मंगनी तो उसने बहुत खुशी से की थी। उस पर ज़रमैन बताती है कि वो जज्बाती हो गई थी और इसी वजह से अंगूठी पहन ली थी। हालांकि तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। वो रामीज़ से मशवरा मांगती है कि शादी बच्चों का खेल नहीं। रामीज़ नरमी से उसे समझाता है कि वो हालात को अच्छी तरह संभाल सकती है, लेकिन इस फैसले की जिम्मेदारी उठानी होगी और हिम्मत से उसका सामना करना होगा। तुम शादी करना चाहती हो आइजर से? वो जो मेरे पीछे पड़ा है, अपने अम्मी अब्बू को भी बुला लिया। मुझे 4-5 साल तक शादी नहीं करनी। वैसे पागल हो। तुम मना कर दो, सिंपल। मैं नहीं मना कर सकता, ना तुम मना कर सकती हो। तुम्हारा खुद का फैसला था ये। मैं तो पता नहीं कितने फैसले करती रहती हूँ। मेरी मंगनी खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। ज़रमैन ऑफिस के दोस्तों को बताती है कि उसकी मंगनी हो गई है। दोस्त ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उसके बॉस को ऑफिस में ये शोर सुनाई देता है तो वो सबको डांट देता है कि काम के वक्त इतनी हलचल क्यों हो रही है। बॉस ज़रमैन को अपने ऑफिस में बुलाकर सख्त लहजे में कहता है कि आज मंगनी की अंगूठी पहन ली है, कल शादी करके चली जाओगी। वो उसे याद दिलाता है। ज़रमैन बॉस से कहती है इसका करियर अभी शुरू ही हुआ है और उसे मज़ीद आगे बढ़ना है। बॉस वाज़े करता है कि 3 महीने का नोटिस दे बगैर वो ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। सारे क्लॉज जानती हूँ मैं, और दूसरी बात है अगर मुझे जाना ही होगा आप सबको बता कर जाऊंगी,
आपके सामने जाऊंगी। प्लीज जाइए। उन्हें क्या तकलीफ थी अगर हम गाना गा रहे थे या लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे? उन्हें तुम्हारी आवाज नहीं पसंद आई होगी। मैं तो बुरा नहीं गाती नाज। जरमैन कहती है कि बॉस का दिल पत्थर जैसा है, मुझे मंगनी की मुबारकबाद भी नहीं दी। जबकि नाजिया कहती है कि हो सकता है बॉस का दिल हीरे जैसा हो। नाजिया चाहती है कि कभी उसकी बॉस से मुलाकात करवाई जाए। तुम्हारी शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ दोगी और ये सोच रही है कि वो ज्वाइन कर ले। जरमैन ने बताया है कि बॉस इंतहाई सख्त और बेरहम है, जिसे कोई आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाजिया कहती है जैसे तुम्हें बॉस ने तंग किया है वैसे मैं बॉस को तंग करूँगी। नाजिया नौकरी करेगी, बॉस से भी ज़्यादा वो खरूस बन जाएगी। बॉस जरमैन नाजिया की मुलाकात बॉस से करवा दे तो नाजिया की वजह से बॉस भी पूरे दफ्तर में परेशान नज़र आएगा। जरमैन नाजिया को कल ऑफिस में बुलाती है। तो बस ठीक है, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ। बॉस से मुलाकात के लिए एक लड़की आती है दुबई से। इंटरव्यू के लिए बॉस की असिस्टेंट बॉस को बता रही है। बॉस कहता है जब वो आए तो बोर्ड रूम में बिठा दीजिएगा। तो मेरे साथ ही रहना। पागल हो गई हो? कुछ भी नहीं। तुम्हें डर लग रहा है क्या? मुझे कभी डर लगा है? सोच लो, लेकिन दोबारा सोच लो। यार एक बार मिल लूंगी ना तो मैं खुद फैसला कर लूंगी। जरमैन नाजिया से कहती है कि सोच लो, कहीं तुम्हें बॉस के सामने जाना महंगा ना पड़ जाए। बॉस बहुत ही खौफनाक और सख्त मिजाज हैं और वो उन्हें अच्छी तरह जानती है। नाजिया जवाब देती है कि एक बार मुलाकात करने के बाद वो खुद फैसला कर लेगी कि शायद वो उसे पसंद ही कर बैठे। जरमैन नाजिया को बोर्ड रूम में वेट करने का कहती है। जब नाजिया बॉस से मिलती हैं तो बॉस कहते हैं कि उन्होंने नाजिया को पहले भी देखा है। नाजिया इंटर्नशिप के बारे में बात करती हैं। सो बिजनेस कैसा है दुबई में? क्या हाल है बिजनेस का? दुबई में? दुबई में तो बिजनेस बड़ा अच्छा है। आपने वहाँ ऑफिस क्यों नहीं खोला? अब असल जगह तो वही है ना। आपका ऑफिस बहुत खूबसूरत है, इधर मुझे काम करने में बहुत मजा आएगा। आपका नाम? नाजिया। मिसेस नाजिया शेख, राइट? नहीं, मेरी शादी अभी कहाँ हुई है। आप क्या करती हैं और आप यहाँ क्यों आई हैं? इतने में बॉस की असिस्टेंट आकर कहती है कि नाजिया शेख आ गई हैं। बॉस हैरत से पूछते हैं कि नाजिया शेख अब आई हैं तो ये कौन है? उसे जाने का कहते हैं कि प्लीज़ आप चली जाएं। जाते जाते नाजिया अपनी इंटर्नशिप को पुक्का समझती है। मैं अपनी इंटर्नशिप पक्की समझूं? हाँ नहीं, अभी लेट यू नो। प्लीज थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी। क्या हुआ? मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन हो गई है। कोई और नाजिया से मिलना था। पर बाय द वे, इतना बुरा तो नहीं है, kind of cute। रुक जाओ, तुम प्रैक्टिस करो क्योंकि मैं बजा रहा हूँ, तुम गा नहीं रही हो। मैं जब तक तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न्स लेकर आता हूँ। इजहर जरमैन और रमीज़ को इत्तला अर्ज़ करते हैं कि मेरे अम्मी अबू आ रहे हैं। ये खबर सुनकर रमीज़ और जरमैन खुश हो जाते हैं। इजहर एक और बात करते हैं कि 1 महीने में अम्मी अबू मेरी और जरमैन की शादी करने के लिए आ रहे हैं। रमीज़ को शूट लगता है ये बात सुनकर। अब जरमैन उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको इस किस्त की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।